خلیج میں تیل کی تجارت کے لیے اہم سمندری گزرگاہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ جاری۔ امریکہ نے ایرانی جزیرے قشون، بندر عباس اور ہرمزگان صوبے میں میزائل اور ایئر ڈیفنس سسٹم پر فضائی حملے کر دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہرمزگان میں ایک مزدور شہید ہوا۔ امریکی فوج نے ایران کے فوجی مراکز کو ٹارگٹ کیا۔ امریکن ویب سائٹ کا دعویٰ، گزشتہ رات حملوں کے تیسرے مرحلے میں ایران کے 140 فوجی اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائیاں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے رد عمل میں کی گئیں۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کا امریکہ کے نئے حملوں کا فوری جواب۔ کویت نے امریکی راکٹ لانچر سسٹم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع نے حملہ مجرمانہ جارحیت قرار دے دی۔ 3 سرحدی مراکز پر 10 سے 11 پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا۔ ایک ڈرون کویتی آئل کمپنی کے ڈرلنگ سائٹ پر گرنے سے مزدور زخمی۔ پاسداران انقلاب نے گزشتہ روز قطر، کویت، بحرین، عمان، اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز کی جوابی بارش کی۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس پر امریکی MQ-9 ڈرونز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور ہینگرز کو تباہ کرنے، اور کویت میں امریکی پیٹریاٹ سسٹم، اسلحے کے ذخائر اور ریڈار سائٹس کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ نشانہ بننے والے ممالک کے مختلف شہروں میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکی اہداف پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی حملوں کے بعد پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کو تا حکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک بحری جہاز نے غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش کی، جس پر انتباہی فائرنگ کر دی گئی۔ آئندہ بغیر اطلاع کسی بھی بحری جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر دشمن اس واقعے کو بہانہ بنا کر کسی بھی قسم کی غلطی کرتا ہے تو اسے سخت جواب دیا جائے گا، پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ایران سے گزشتہ روز ڈیل طے ہو گئی تھی۔ ایرانی جوہری پروگرام سمیت سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہوئے۔ مذاکرات کار کمرے سے باہر نکلے، تجارتی جہازوں پر حملہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا دعویٰ، آبنائے ہرمز بند کرنے کا ایرانی دعویٰ مسترد۔ موقف اپنایا کہ آبنائے ہرمز انٹرنیشنل حدود میں واقع ہے، اس پر ایران کا کوئی اختیار نہیں۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور اب ختم ہو گیا۔ امریکہ سے کہا تھا کہ اپنے وعدوں اور عزم کو پورا کریں ورنہ قیمت چکانا ہوگی، اب اسے حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا بیان، ایرانی فوج کا امریکہ سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرنے کا مطالبہ۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو درجنوں ایٹمی بموں سے زیادہ اہمیت کی حامل قرار دیا۔ مشیر سپریم لیڈر نے واضح کر دیا کہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کی جائے گی۔ ایرانی ہرمز اتھارٹی کے مطابق امریکی فوج کے غیر قانونی نقل و حرکت کے باعث آبنائے ہرمز میں سفر ممکن نہیں۔ صورتحال پرسکون ہونے پر جہازوں کو اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ عمان کا حالیہ حملوں پر ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج، مسلسل حملے امن کی کاوشوں کے لیے پیچیدگی کا باعث ہیں۔ قطر کا اظہار مذمت، حکام نے احتیاطی طور پر جہازوں اور کشتیوں کو سمندری سفر سے روک دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس کا امریکہ ایران حالیہ کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ دوبارہ جنگ کا آغاز نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے سنگین نتائج کا باعث ہو سکتا ہے، اینٹونیو گوٹرس کا بیان۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے اقدامات کی اپیل کر دی۔ خصوصی عبادت میں پوپ لیو کا مشرق وسطی، یوکرین اور دیگر علاقہ جات کی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا جنگ کی ہوائیں چل رہی ہیں جن کو روکنا ضروری ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔
दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। इसहाक डार की अपील, खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मुअस्सर रास्ता करार, खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का आज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी की नमाज जनाजा अदा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और दीगर कतरी हुक्काम की शिरकत। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का साबिक़ अमीर कतर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कतर का दौरा करेंगे। कतरी हुकूमत से शाही खानदान और आवाम से इजहारी यकजहती के लिए आज यौम सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। बलोचिस्तान के इलाके माशकील में नामालूम अफराद की हेयर सैलून पर फायरिंग, 5 मजदूर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। हुकूमती बलोचिस्तान ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का माशकील में 5 मजदूरों के कत्ल पर अफसोस का इजहार। बेगुनाहों का कत्ल जुल्म करार। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने निहत्ते मजदूरों को टारगेट किया। वज़ीर दाखिला का गम की घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़े रहने का ऐलान। पाक फौज, FC, बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 7 खारिजी मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक खारिजियों की मजमूई तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 109 खारिजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज बुट्टी का हना उड़क के गांव बबरी का दौरा। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान का जायजा। ऑपरेशन में शरीक पुलिस एहलकारों से मुलाकात। बहादुर एहलकारों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। हुकूमती वफ्द के सानिहा ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमती वफ्द ने सानिहा ज़ियारत के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती वफ्द की क़यादत सूबाई वज़ीर दाखिला और सूबाई वज़ीर सेहत कर रहे थे। बलोचिस्तान हुकूमत ऑल पार्टीज़ और लवाहिकीन के दीगर मुतालबात पर अमल दरामद के लिए तैयार। भारत आभी जारियत के खिलाफ सिंध भर में पीपल्स पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। कराची में रैली से वजीर मेहनत समेत जियाले रहनुमाओं का खिताब। मोदी सरकार को होश के नाखुन लेने का मशवरा। जेकबाबाद में MNA हाउस से प्रेस क्लब तक जियालों की रैली। लाड़काना में जिनाह बाग चौक पर दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजाहरा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनार और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मरसू मरसू सिंधु दरियाना देसों के नारे। हैदराबाद, दादू, ठट्टा, शिकारपुर, नवाबशाह, मीरपुर खास, लाड़काना, जेकबाबाद समेत दीगर शहरों में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एकतरफा खिलाफ वर्जियों पर रैलियां निकाली। ख़वातीन मुल्क की तामीर और तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। इस्लाम ने 1400 साल कबल ख़वातीन के बुनियादी हुकूक बता दिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम। ख़वातीन के इजलास से खिताब। रुकन ममालिक के वज़रा, आला हुक्काम और बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की मंजूरी। OIC प्लान ऑफ एक्शन बराए ख़वातीन पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। कराची में उम्र वीज़ों की आड़ में बैरून मुल्क जाने की काविशों करने वाली ख़वातीन को ऑफलोड कर दिया गया। ख़वातीन की तादाद 3 थी। FIA ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की। लाहौर के इलाके इचरा में चोरी के इल्जाम में 11 साला बच्ची पर वहिमाना तशद्दुद। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मुल्जिम को शाह जमाल से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
लाहौर के इलाके सुंदर में खातून से मुबैना ज्यादती और रकम हथियाने के मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने खातून को मॉडलिंग का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया। अकाउंट से 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर फरीद कॉलोनी में औबाश शख्स की कम सिन बच्चियों को हिरासत करने की कोशिश। बच्चियां खौफजदा होकर भाग गईं। मासूम बच्चियों का ताक़ुब करते शख्स की फुटेज सामने आ गई। पुलिस को मुल्जिम की तलाश। लाहौर में फैरोजपुर रोड पर सुथरा पंजाब के ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 1.5 साला बच्ची जमहक मियां बीवी जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने ड्राइवर को तहवील में लेकर पुलिस के हवाले किया। कराची में नेटिव जेटी पुल पर 2 ट्रेलर्स में तसादुम। हादसे के बाद एक ट्रेलर पुल से नीचे लटक गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, ट्रेलर को हटाने के लिए क्रेन मंगवाना पड़ी। वजीर आला पंजाब की वजीर तालीम को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब। ट्यूशन सेंटर की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की एनरोलमेंट का हदफ हासिल कर लिया। गाज़ा में इसराइल की दरिंदगी जारी। अल बुरीज पनाह गुज़ीन कैंप में फायरिंग से 9 साला बच्ची को शहीद कर दिया गया। गाज़ा सिटी में मिसाइल हमलों से 4 फलस्तीनी शहीद। लाहौर फैसलाबाद बांग्लादेश में कई रोजा बारिशों के बाद शदीद सैलाब से तबाही। 51 अफराद जाँ बहक। बंगाल का साहिल इलाका डूबने से 2 लाख से ज्यादा अफराद फंस कर रह गए। क्रोएशिया के जजीरे कोरक्योला में बारिशों से पहले जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। मुल्क के दीगर हिस्सों से फायर फाइटर्स को तलब कर लिया गया। आग बुझाने की कोशिशें जारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आखिरी क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना की टीम स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। मुकर्ररा वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर था। इजाफी वक्त में अर्जेंटीना ने मजीद 2 गोल दागे और सेमीफाइनल में जगह पक्की की। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मुकाबला होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अर्जेंटाइन में जश्न। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। महकमा खेल और उमूर नौजवान का फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस शायकीन को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का फैसला। सिंध के मुख्तलिफ डिवीजन और अजला में फुटबॉल शायकीन के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की जाएंगी। सिंध हुकूमत की दावत पर आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान लियावी में फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे। चीन और फ्रांस की जोड़ी गाओ हिंगे और क्रिस्टीना मलादनोवोक ने विंबलडन वुमेन टाइटल अपने नाम कर लिया। कनाडा और ब्राजीलियन की जोड़ी जबरीला डब्रोस्की और लॉइसा स्टेफनी को 6-3 और 7-5 से